जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी।
जय राधा माधव कुंज बिहारी जय ओम विश्वपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत शिष्यमत His Divine Grace Srila Bhai Charana Arvind Bhaktivedanta Swami Jagat Guru Srila Prabhupada ki Jagat Guru Srila Prabhupada ki Jai Om Vishnupada Paramhansa Parivrajaka Stottar Sata Shishimat His Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Maharaj Srila Prabhupada ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki Jai नमाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद से अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। ब्रजवनी वृंदावन धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। समावेत भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. Glories to Sri Sri Guru and Sri Gaura. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So, we are continuing to read from Srimad Bhagavatam, Canto 9, chapter number 18, and text number 28, 29. Tatheti avasthite praha devyani manogatam pitra datta yato yasye sanuga yatu mam anu tathaityavasthite praha devayani manogatam pitra datta yato yasye sanugayatu mamanu tathyaivasthite praha devayani manogatam pitra datta yato yasye sanugayatu mamanu tathyaivasthite praha devayani manogatam pitra datta yato yasye sanugayatu mamanu और कोई Tatha iti, when King Vrishaparva agreed to
Shukracharya's proposal. Avasthite, the situation being settled in this way, said, Devyani, the daughter of Shukracharya, Manogatam, her desires, Pitra, by the father, Datta, given, Yataha, to whomsoever, Yasye, I shall go, Sa Anuga, with her friends, Yatu, shall go, Mam Anu, as my followers or servants. Translation. After hearing Shukracharya's request, Vrishaparva agreed to fulfill Devyani's desire, and he awaited her words. Devyani then expressed her desire as follows. Whenever I marry by the order of my father, my friend Sharmistha must go with me as my maidservant along with her friends. Pitra datta deva yanyai Sharmistha sanugatada swanam tata sankatam viksha tadarthasya cha gauravam Devayani paryacharata Sri Sahasrena dasavat. Pita, by the father, Datta, given Devayani unto Devyani, the daughter of Shukracharya, Sharmistha, the daughter of Vrishaparva, Sanuga, with her friends, Tada, at that time, Swanam, of his own, Tat, that, Sankatam, dangerous position, Viksha, observing, Tat, from him, Arthasya, of the benefit, Cha, also, Gauravam, the greatness, Devyanim, unto Devyani, Paryacharat, served Stri Sahasrena with thousands of other women, and Dasavat means acting as slaves. Vrishaparva wisely thought that Shukracharya's displeasure would bring danger, then that his pleasure would be material gain. Therefore, he carried out Shukracharya's order and served him like a slave. He gave his daughter Sharmistha to Devyani, and Sharmistha served Devyani like a slave along with thousands of other women. In the beginning of these affairs concerning Sharmistha and Devyani, we saw that Sharmistha had many friends. Now these friends became maidservants of Devyani. When a girl married a Kshatriya king, it was customary for all her girlfriends to go with her to her husband's house. For instance, when Vasudeva married Devaki, the mother of Krishna, he married all 6 of her sisters. And she also had many friends and accompanied her. A king would maintain not only his wife but also many friends and maidservants of his wife. Some of these maidservants would become pregnant and give birth to children. Such children were accepted as Dasiputra, the sons of maidservant, and the king would maintain them. The female population is always greater than male, but since a woman needs to be protected by men, the king would maintain many girls who acted either as friend or maidservant of the queen. In the history of Krishna's household life, we find that Krishna married 16,108 wives. These were not maidservants but direct queens, and Krishna expanded himself into 16,108 forms to maintain different establishments for each and every wife. This is not possible for ordinary men. Therefore, although the kings had to maintain many maidservants, many servants and wives, not all of them had all the establishments.
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि श्रीहरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Vrishaparva was thinking that the curse should be minimized. Curse should be minimized. So he agreed to the proposal of Devyani. It is said that the desire of a girl is invested by her father. The father expects the girl child to keep his prestige up. Generally, inheritance is given to the son, but the inheritance of the character must be spread through the girl child. So, Vrishaparva thought that instead of getting too much curse of the Kula Guru of Rakshasas, it is better to make a little compromise or trade-in situation. Okay, so let Devyani give the judgment, herself. All right? What do you want? To take revenge on the foundation of quarrel, that who is on upper class and who is a lower class, Devyani spoke up. The lower class means they should work like maid servant. This is not only found here, but in early times during the churning of ocean, which I understood that it is taking place somewhere near Fiji. Because how the snakes were generated. Probably dengue, or kalia. They call it dengue, right? Dengue was produced here. So in Mahabharata the story comes that Kashyap Muni, who is the progenitor of all other species of life, he was so powerful. If you think of a particular species in your mind, even though you have human type of body, yet you can generate many species. I mean, you think and you get it. Yeah, you think and you get it. But Kashyap had many wives. Diti and Aditi, they were the two. Diti
and Aditi. Huh? But the two were main wives. But at the same time, general population of Diti are called Daityas, and Aditis are Adityas. Adityanam aham Vishnu. Aditi का बेटा वामन देव और विष्णु भगवान का अवतार. So if Diti and Aditi have this main conflict, all right, competitive conflicts, but they are all under the direction of Kashyap Muni, who is a very powerful Muni. And there are 8.4 million species of life. So most of the other species, the lower species, were generated by Kashyap Muni through Diti. And we see Hindi में, so Diti और Aditi दो मुख्य पत्नी थी, पर लेकिन उससे भी ज़्यादा कई पत्नियां थी, क्योंकि सारी पत्नियां के पास जो जनरेटिव पावर था बच्चों पैदा करने का, वो भी अपनी अपनी अलग अलग भावनाओं के अनुसार जन्म दे पाती थी. कश्यप मुनि वैसे ही बीज प्रदान करते थे जैसी उसकी मन भावना होती थी. तो दो और पत्नियां का विवरण आता है महाभारत में कि इनकी दो पत्नियों में एक पत्नी का नाम था कद्रु और दूसरी पत्नी का नाम था वनिता. सही. समुद्र मंथन हो रहा था, और पहले तो हलाहल प्राप्त हुआ, तो शिव जी को प्रार्थना करनी पड़ी उन लोगों को कि आप ही जगत के कल्याण करना रहे हैं, को कंट्रोल कर सकते हैं. तो उन्होंने पिया और कंठ में ही रहने दिया, पेट में डाला ही नहीं. कितनी चालाकी है. तो वो नीलकंठ कहलाने लगे, क्योंकि उसमें जहर था, उससे कोई मरता नहीं. तो वहां से सारे अमूल्य रत्न समुद्र में मंथन के द्वारा निकलने लगे. तो उच्चैश्रवा नाम का एक घोड़ा, जो सफेद घोड़ा होता है, पूर्ण रूप से सफेद, ये लोग यूनिकॉर्न भी कहते हैं अंग्रेजी में, ऐसा घोड़ा, सेलेस्टियल घोड़ा. तो वैसा निकलने वाला था अगले दिन, उसका नंबर था. तो ये कद्रु और वनिता, कद्रु खटपटी है और वनिता भक्त रूपिणी है. दोनों में आसमान जमीन का फर्क है. तो कद्रु और वनिता के बीच में होड़ रहती थी, कंपटीशन. तो वो लोग बेटिंग करते थे. बेटिंग करना यानी कि दाव पर लगाना. तब वो खटपटी स्वभाव वाले को शकुनी मामा जैसे याद दिलाती है, खटपटी स्वभाव. तो कद्रु ने वनिता को बुलाया, ए बहन इधर आ, देखो कल तो उच्चैश्रवा निकलने वाला है, और वेदों में सुनते आए हैं कि ये तो सफेद घोड़ा होता है, लेकिन मेरे मन में कुछ और हो रहा है, बोलो. एक घोड़ा की पूंछ काली होती है, ये निकलेगा, अलग भाव से निकलेगा. वनिता के शास्त्र में हमें विश्वास रखना चाहिए. शास्त्र में तो कहते हैं कि घोड़ा सफेद ही होता है. तो कि बेट लगाओ, कौन जीते. तो कद्रु ने कहा
तू यदि हार गई और मेरे अनुसार काली पूछ वाला घोड़ा निकला, तो तू मेरी दासी बनेगी, मेरी सर्विस करेगी। नहीं तो हम दोनों एक शरीक ही स्टेटस वाली पत्नियां हैं, कश्यप को नहीं की। तो वनिता के बेचारी, हाँ मैं तो शास्त्र में विश्वास रखती हूँ, हाँ होने दो। हाँ तो दूसरे दिन आते पहले रात को ही कद्रू ने सोचा हमारे पति बहुत सक्षम है, मेरी इच्छा पूर्ण करेंगे। तो संध्या के समय में ही जब शिवजी पसार होते हैं, उस समय में वो पति के पास जाती हैं कि मेरी इच्छा पूरी करो। तो क्या है, हमें ऐसे बच्चे चाहिए जो लंबे हो, काले हो, और सब जगह जा सकते हो, तर सकते हैं, जमीन पर भी जा सकते। तो सांप पे पैदा हुए और कद्रू ने कहा उच्च शवा जैसे आए न बाहर निकले, उसकी पूंछ पर चिपक जाना। हाँ ठीक। तो जब संध्या के समय में कोई काम वासना लेकर जाता है तो श्रापित होता है। तो शिव जी का श्राप कद्रू को मिला और ये सारे जहरीले बने। हाँ तो कहते हैं कि शिव जी ने जब थोड़ा जहर बाकी रखा था तो वो पीकर चले गए और सीधे उच्च शवा की पूंछ पर चौंट गए, चिपक गए। राइट। अभी क्या हुआ कि वनिता भी शाम को के बाद गई रात्रि को, और उसने कहा पति जी हमारी भी इच्छा कुछ है तो पूरी करें। मुझे ऐसा बच्चा चाहिए जो भगवान का भक्त हो और आकाश में उड़कर सब पर नजर रखता रहे। हाँ तो गरुड़ जी का जन्म हुआ और गरुड़ जी विचरते थे। तो वैसे तो गरुड़ और सांपों में द्वेष था ही नहीं, भक्त क्यों द्वेष करेगा। लेकिन सुबह उठे उच्च शवा आया तो कद्रू ने वनिता को बोला देख देख देख, मेरी धारणा सच हुई। देख उच्च शवा की पूंछ काली, दूर से देखे काली दिखाई देती है। हाँ नजदीक तो कोई क्षीर समुद्र में जा ही नहीं सकते, तो वहां देखा। हाँ तो वनिता तू हार गई, अब तू मेरी दासी बनकर जिंदगी भर रगड़ करूंगी तेरी। हाँ तो वनिता चुपचाप शांत कर ली। लेकिन गरुड़ जी ऊपर से देखते हैं और उन्होंने देखा ये तो सांप है, पूंछ पर चिपके और मेरी माँ को पता नहीं, और उसकी दासी बन गई। तो सब सांपों को उखाड़ उखाड़ करके मारने लगे और बाकी के भागे। तो उसमें तक्षक कालिय सभी थे। हाँ? तो भागे बचे। कालिय तब भागकर जमुना में आया। हाँ? जब कृष्ण भगवान ने उसे वापस भेजा, जहां से आया चला जा रमणक द्वीप में। हाँ? तो ये फिजी निकला। हाँ? तब से वो वापस आया था। हाँ? तो गरुड़ जी सांपों के दुश्मन बने और अपनी माँ को मुक्त कर दिया। उसका ये ईर्ष्या के कारण होता है। भक्त लोग ईर्ष्या मिटा सकते हैं। तो ये सांपों को मारना गरुड़ जी का स्वभाव, भक्तों का भी स्वभाव ऐसा होना चाहिए। भागवत में आता है। हाँ? एक बार सच्ची घटना है, बाग बाजार गौड़िया मठ
था वहाँ, वही जगह या कहीं और, उल्टा डांगा। हाँ, तो वहाँ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज क्लास दे रहे थे। हाँ, और भक्तों की भीड़ बहुत थी, कई लोग को खड़ा भी रहना पड़ा। हाँ, तो बीच में सांप आया, तो भक्त लोग इधर उधर दौड़ा दौड़ करने लगे। तो भक्ति सिद्धांत ने क्या क्या है बात? कि सांप है, तो मारो उसको। तो भक्तों ने मार दिया। हाँ, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज कहते देखो, साधुरेव अपि मोदते वृश्चिक सर्पाणी हत्या। साधु लोग भी वृश्चिक और सर्प की हत्या यानी कि इसके जहर हटाने में आनंद लेते हैं। कहा मारो। ये जहरीला स्वभाव साधुओं के सामने होता ही नहीं, यानी कि द्वेषी स्वभाव नहीं होना चाहिए। भगवान के साथ द्वेष करने वाले को भक्ति सिखाया कि कौन? कभी पैदा होती नहीं भगवान के द्वेषी को। चाहे धर्म परिवर्तन करके मुसलमान आए और अपनी बेटियों को फंसाएं और बाद में जबरदस्ती से धर्मांतरण करने की लव जिहाद बताते, ये द्वेषी, इनको तो क्या किया जाए, हटाना ही चाहिए। तो नहीं तो भक्ति इनको प्राप्त होती ही नहीं। भक्ति किसको प्राप्त होती है? किसको प्राप्त होती है? जो ईर्षालु नहीं है। इदम तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञान विज्ञान सहितम यद ज्ञात्वा मोक्ष से सुभात राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। तो ये उपदेशात्मक बातें हैं और ऐसा चरित्र है, होता था, अभी भी है और होता रहेगा, क्योंकि ये भौतिक दुनिया विरोधाभास स्वभाव से पैदा हुई है। द्वंद्व जिसे कहते हैं, और इच्छा और द्वेष के कारण द्वंद्व बनता है। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। ये सम्मोह पैदा करता है। समग्र मोह, फुल कंफ्यूजन, सन्मोह, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं है। सभी ड्युअलिटी का आधार ये इच्छा और द्वेष है। तो द्वेषी स्वभाव राक्षसों को और सांपों को इत्यादि जहरीली इनको दिया है। तो द्वेषी स्वभाव कैसे हटाते हैं? यदि आपके बीच में नहीं है तो जानबूझकर मारने की आवश्यकता नहीं है। आप बीच में जो सांप आया तो पिटाई करनी पड़ेगी। उसी तरह जहरी स्वभाव का कोई भगत आया, और कोई डिस्टर्बेंस कर रहा है तो उसको बाहर निकालना चाहिए। बाहर निकालना चाहिए। तो यहाँ ये द्वेषी स्वभाव इतने बड़े बड़े परिवारों में भी बनता रहता है, कॉम्पिटिटिव नेचर। और राजवी घराने में तो खास दिखाई देता है। वो लोग भी शादियों में बड़ा बड़ा अपना मैं बड़ा हूं ऐसा खर्चा करना चाहते हैं। लेकिन जब आपस में बैर हैं तो लड़की वहां नहीं जा सकती, चाहे वो ही राजपूत क्यों न हो। वो लोग दूसरी जगह शादी करवा लेंगे, लेकिन अपने कैटेगरी में। तो लड़की वाले ज्यादा पैसादार हैं तो लड़की को ताबेदारी करनी पड़ती है पैसों के कारण।
ऐसे बहुत सारे हैं उदाहरण। द्वेषी स्वभाव, मिथ्या अनुकरण कोई नहीं कर सकता, विघ्न आते ही है। वो एक बड़ा पॉलिटिशियन है, और जब वो पढ़ता था लंदन में तो एक दूसरे पॉलिटिशियन की लड़की जो मुसलमान थी, दोनों ने सोचा कि हम लोग आइडियल बन जाएंगे, तो शादी कर ली। तो लड़की परिवार से हट गई, वो हिंदू था, ये मुसलमान थी। तो बाप ने सोचा अभी तो मैं कुछ नहीं बोल सकता कि मेरी ही लड़की मेरे म्याऊं कर रही है, लेकिन स्वभाव जाता नहीं। तो उसको उसका नामकरण भी हिंदू हो गया और वो भी हो गई हिंदू जैसे, अपने पति के साथ रहने लगे। लेकिन कब तक मामला चलता है ठीक? जो द्वेषी स्वभाव होता है वो तो खटकता है। तब उसके पिता जो मुसलमान थे, काफी खटपटी आदमी, तो उसने सोचा तलाक करवा दिया। अबरोवत है क्या है? रोने का अर्थ क्या है? अब क्या रोवत है जब चिड़िया चुग गई खेत। जब भक्तों का तो रखरखाव अलग सा ही होता है। राम की चिड़िया बोलते हैं उसको। राम की चिड़िया, राम का खेत, खाओ वो चिड़िया बरबर पेट। उल्टा ही स्वभाव। तो ये स्वभाव की जो बातें हैं, तो कृष्ण भावना को आगे बढ़ाने के लिए द्वेष तो जड़ से निकल जाना चाहिए, मूल से निकलना चाहिए। नहीं तो ये सब कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है जो वाजिबी नहीं है। ये कोई उत्तम प्रजा पैदा करने वाला नहीं है, क्योंकि राजा अपना स्वभाव नहीं भूलेगा। चलो शर्मिष्ठा भी आई और उसके साथ उसकी 1000 सहेलियां भी आई। तो राजा सबका भरण पोषण करेगा। वो कोई सोचता है कि ये फंस गया, फंसेगा। पैसे से वो कितना संभाल सकता है, सबका रखरखाव कर सकता है, लेकिन आदतें भूल नहीं सकता, रजोगुणी स्वभाव। तो शर्मिष्ठा से भी बच्चे पैदा कर। इसकी शर्त ये है कि ये मेरी दासी होगी। और राजा को बाद में वो डांट मारती है कि खबरदार जो उससे बच्चे पैदा किए तो। ब्राह्मणों का भी कुछ चलेगा नहीं, वो कोई सत्यवादी थोड़ी है। ब्राह्मण अपनी अपनी कला में श्राप देने के लिए सक्षम होता था। जैसे श्रृंगी ने भी, एक छोटा लड़का था लेकिन ब्राह्मण का बेटा था, अपने बाप का अपमान सहन नहीं कर पाया तो राजा परीक्षित को श्राप दे दिए कि 7 दिन में तक्षक आकर तुझे मार डालेगा। वो शरीर संबंधी ही होता है, आत्मा को कोई श्राप नहीं लगता, आत्मा पीड़ित नहीं होती। कल वृत्रासुर की भी बात की थी ना। वृत्रासुर हिम्मत से आया पार्वती को कहने का, मां तू अपने जगह ठीक है, तू सत्य बोलती है, लेकिन तेरे हिसाब से मुझे कुछ नहीं होगा, तेरे श्राप मेरे मत्थे पर ले लेता हूं, राक्षस बनूंगा, फिर भी मैं अपनी भक्ति नहीं छोड़ूंगा। यही वृत्रासुर है। तो ये सारी जो कहानियां हैं तो वो भगवान की भक्ति में बाधा डालने वाली ये ईर्ष्या वृत्ति
पर है। यहां भगवान की कोई बात नहीं आती। ब्राह्मण होते हुए भी ब्रह्म को जानता होता वो भी कलयुग तो कितना अभी उसमें प्रसार कर चुका है अपना, कितना दूषित ब्राह्मण वर्ग होगा। लड़ते हैं। मैंने कल यादवों की भी बात की थी। अभी ये यादव ऊंचे यादव नीचे यादव सब ये यादव अंदर अंदर लड़ रहे हैं। वोटिंग का माध्यम यादव बैंक कहलाती है, वोटिंग बैंक। यादव बैंक अलग है। कोई ये अनुसूचित जातियों का कार्ड खेलना चाहता है। ये सब पॉलिटिक्स। तो ये भी पॉलिटिक्स का हिसाब है। किसी को श्राप देना, किसी को हटा देना, ये भक्ति में नहीं आता। ये भक्ति में नहीं आता। यदि भक्त हो तो भक्त बनने के लिए हमें सावधानी से बरतना पड़ता है। लेकिन कहां तक लोग ना समझ रहेंगे। लेकिन कलयुग है, प्रचार में भी ऐसी होसातुसी होती है। मैं बड़ा हूं तो छोटी है, मेरे कहे बिना तू कहीं जा सकती नहीं, मैंने तुझे भक्त बनाया। और भक्त बनाया, डिसाइपल किया है, तो गुरु के साथ संबंध बनाया है। उसके लिए क्या पाबंदी हो सकती है? मेरे पीछे बोले बिना तो गुरु को मिल नहीं सकती। तो कौन बड़ा हो गया? गुरु तुम्हारा चेला है? ये व्यापारी बुद्धि करते हैं। ये सब ईर्ष्या का कारण है। उसे भक्ति आगे नहीं फैलेगी। तो यहां काफी समझ आ रही है कि ये सारा मामला भगवान विरुद्ध का मनुष्य मनु भगवान द्वारा मनुष्य पैदा हुए मनु और शत्रुपा की संतान कहलाती हैं। और प्रजा पैदा करने के लिए, तो जब प्रजा पैदा करने में कितनी मुश्किलें खड़ी होती है उसका कोई सोचता नहीं, और ऐसी कॉम्प्लिकेसी में चढ़ जाते हैं लोग। तो कलयुग में कितनी कॉम्प्लिकेसी होगी। जब सत्ययुग की बात होती है, जहां सारा प्रावधान है कि तपो दिव्यम पुत्र का शुद्ध तस्मात् सौख्यम ब्रह्म सुखम अनंतम, उसके लिए जो प्रयत्न करने हैं कोई करता ही नहीं। कोई तप ही करना चाहिए। कलयुग में कौन तप कर सकता है? प्रायण अल्पायुष्य कला सभ्य कलावस्मिन युगे जना मंदहा सुमंद मतयो मंद भाग्या ही उपद्रुता। ये कलयुग के लक्षण है। कोई तप करने का बताया है क्या? कर ही नहीं सकते। तो फालतू तप करने की भावना क्यों कर? फालतू यज्ञ करने का मतलब नहीं। अभी भी द्वापर युग तो 5000 साल पे ही खत्म हुआ, लेकिन असर अभी भी है। वो ओवरलैपिंग पीरियड कहलाता है। लेकिन ये 10,000 साल के बाद तमाशा देखो। प्रभुपाद जी कहते हैं, नो इस्कॉन, नो बुक्स, नो हरे कृष्ण महामंत्र। ये तो चेतावनी है, वेरी वेरी डायरेक्ट थ्रेट ऑफ कलयुग विल बी स्प्रेडिंग। तो ये भक्ति का उदयकाल चैतन्य महाप्रभु के समय से जो चालू हुआ है,
वो ये एकमात्र अपना साधन है कि सारी दुनिया को ये भव सागर से मुक्त कराने के लिए। भव यानी रिपीटेड बर्थ एंड डेथ। ये कहां तक? और वही ईर्ष्यालु भावना, पति पत्नी में भी ईर्ष्यालु भाव हो और बच्चे कैसे पैदा होंगे? यही तकलीफ है। और ज्यादातर जो ना समझ हैं और कहते कि हमें तो भक्त की ही शादी करनी है, तो लेकिन सावधानी तो ये है कि ईर्ष्या मिटी है क्या? ईर्ष्या मिटी है? ईर्ष्या से तो कोई भक्त नहीं बन सकता, भक्ति डूल हो जाती है। ना समझ हो तो समाधान, अकलमंदी बरतानी चाहिए। ईर्ष्या होती है तो विश्वास टूटता है, तो भक्ति कहां? कौन सिखाएगा? मार मचोड़ करके किसी को हम मुसलमान भी नहीं बनाते, तो मुसलमानों जबरदस्ती क्यों करते हैं? तो ये एक प्रकार की अहम भावना कहलाती है। अहम भावना यानी कि अपना ईगो उठाओ, अहंकार को ऊपर बनाए रखो कि मैं भी कुछ हूं। जब भक्ति के लिए चैतन्य महाप्रभु मैं कुछ भी नहीं, कितना विरोध है। यदि कोई भक्त कहता है मैं कुछ हूं, मैं कृष्ण भावना में योगदान दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन फंसेगा। कृष्ण भावना में ऐसी सारी भावना विघ्न करती है। विनम्रता, भगवान को भजना है तो अपनी भौतिकता पर हमें शर्म आनी चाहिए। वो भौतिकता का उपचार हम नहीं कर सकते। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णु न अमानी न मानदे न कीर्तनीय सदा हरि। यह गोलोक वृंदावन जान में तो कीर्तनीय सदा हरि होता है, लेकिन वहां कौन जा सकता है? तृण से अधिक अपने आप को जो नीच मानता है। दंते तृण धरी, मुख में तृण कौन डालता है? पशु डालते हैं खाने के लिए, मुख में सीधा घास खाते हैं। तो हमें तो हाथों से मुख में घास डालना चाहिए कि हम अबूझ ये हैं, अपने होने पर कोई हमें अभिमान नहीं है। गैया देखो बिल्कुल दोष रहित होती है। जब दोष रहित होते हैं तो कहते हैं कि इनके शरीर में 32 कोटि 33 करोड़, करोड़ नहीं है, टाइप्स बताए, देवता इनका वास करते हैं। तो देवता तो फंक्शनरी बताए हैं, तो यदि गाय के शरीर में भी फंक्शन करते हैं तो मनुष्य के शरीर में भी तो फंक्शन करने चाहिए ना। शरीर के अंदर की रचना को फंक्शन कौन कराते? तो देवता कराते, करते ही। लेकिन अपना अहंकार, हम तो चिकन खाएंगे और कृष्ण भगवान को क्या पचाओ। यदि कृष्ण भगवान पचाना नहीं चाहता है तो वही किचन मारेगा। ये चिकन जो इतना सत्य, जो कर्नल सैंडर्स है ना, वो भी सफेद मुर्गी जैसा ही दिखाई देता है, जिसने कंटाकी फ्राई चिकन बनाया।
कहने का मतलब है जैसी जाकी जैसी भावना। बाद में तुलसीदास क्या कहते हैं, जैसी जिसकी भावना उसका चरित्र भी ऐसा ही होता है। तो इसी तरह ये गहरा स्वभाव है, बहुत अनादिकाल से पैदा हुआ है, ईर्ष्या से पैदा हुआ है। यानी कि उस समय भी जब ब्रह्मा को आदेश मिला सबका प्रजापति बनना, तो ये ईर्ष्या वाला स्वभाव होना ही चाहिए, वो जो राक्षसों का स्वभाव कहते हैं। ब्रह्मा जी सभी को योग्य अपना अपना शरीर देते थे। ब्रह्मा जी के सामने देवताएं इनका सूक्ष्म शरीर के रूप में थे और पीछे राक्षस। तो ब्रह्मा जी ने तो अपने सामने जो खड़े हैं इनको सबको देह देना चालू कर दिया। तो सभी देवताएं तैयार, लेकिन राक्षस के देखो ये पक्षपात करता है। जो पीछे है वो पक्षपात करता है, तो वो कहां तक सहन करें हम? उसको छोड़ो मत, पकड़ो उसको, तो खींचने लगे। दूसरा कहने के उसको खा जाओ, वो क्या हमें, ये पक्षपाती है, उसको ही मारो। तो कहा कि जो इनको छोड़ो मत, पीटो, तो वो यक्ष कहलाने लगे, और खाओ, वो राक्षस कहलाने लगे। यहां तो उत्पत्ति हो गई। ब्रह्मा भी इतने चतुर चालाक हैं, तो देवताओं की और राक्षसों की उत्पत्ति इसी तरह बताते हैं, जो एक रख रखाव के लिए फंक्शनरी है, दूसरे है नाश के लिए। अपना विस्तार करने के लिए अपने वालों का तो नाश नहीं करेंगे। तो ये प्रजोत्पत्ति तो दोनों का विषय है, सही ना। तो देवताओं को फंक्शनरी बनाया, राक्षसों को डिस्ट्रॉयर बनाया, लेकिन फिर भी ब्रह्मा का काम प्रजा पैदा करने में मुश्किल ही बड़ा ही रहा है। तो ऐसी तरह मनु और शत्रुपा की संतान में कोई आसानी से पैदा। मनु और शत्रुपा की संतान में भी देखिए 2 बेटे थे और 3 बेटियां थी, प्रियवत और उत्तानपाद। उत्तानपाद का अर्थ है जिसके पांव उल्टे हैं, यानी कि वो अपनी स्त्री का कहना मानता है। सुनीति और सुरुचि, तो सुरुचि सुनीति को हटा दिया, सुरुचि को ले लिया। ये ईर्ष्या का स्वभाव देखो, ये मनु और शत्रुपा की संतान में है। 3 बेटियां में भी अकुति, प्रसूति और देवहूति 3 निकली। इसमें अकुति और थोड़ी भक्ति भाव वाली थी, लेकिन प्रसूति तो दक्ष की पत्नी बनी। सिर्फ प्रसूति ही करना जानती है। वहां भी देखो उसके 1000 बेटे पैदा हुए हैं, और दक्ष नहीं था तो नारद मुनि ने सब बेटों को सन्यासी बना दिया। तो जब दक्ष को मालूम हुआ, श्राप दे दिया, नारद मैं तो प्रजापति हूं, यहां इन लोगों को सन्यास देने की क्या आवश्यकता है? उनको भी प्रजा पैदा करने के लिए तो मेरा काम है, आप दखल करते हो।
भगवान की आज्ञा से मैं भी सेवा करने आया हूं, तुम भी अपनी अपनी सेवा करो, चलो। इसमें एक दूसरे से हमें वैर क्यों होना चाहिए? नहीं नहीं, ये मेरे काम में तुम दखलगिरी करते हो, जाओ मैं तुमसे श्राप देता हूं कि किसी भी जगह 3 दिन के ज्यादा तुम टिक नहीं पाओगे। होलसेल संन्यास, इतने सारे सन्यासी किसी ने बनाए ही नहीं। 1000 साधु बना दी। तो ये मनु और शत्रुपा की संतान सिर्फ देवहूति एक बहुत भक्ति भाव वाली निकली, क्योंकि वही नारद मुनि से उसने सुना था कि ले तेरे लिए योग्य वर यह है, ये सन्यासी है, साधु है, निरंतर भगवान का ध्यान करता है, उसके परिवार वाले में भी हम कोई जानते नहीं। ऐसे कर्दम मुनि ब्रह्मा की सीधी संतान है। और भगवान इसकी भक्ति इतने खुश थे तो आकर उसको आशीर्वाद दिया कि कर्दम, मैं तो तेरे बेटे के रूप में आना चाहता हूं। भगवान ने फंसा दिया उसको प्रजापति बनाने के लिए। तो तू ऐसे व्यक्ति से तो तेरे पिता को कहे। तो मनु महाराज को अपनी बेटी कितनी उस्ताद है, पिता को कहने लगे, क्या मेरी शादी बाकी है, 2 बहन तो चली गई, लेकिन मैंने सुना है तो ऐसे पति मुझे चाहिए। तो मनु महाराज और शत्रुपा दोनों कर्दम मुनि पर के आश्रम पर आए और सीधा ही शादी के लिए सारी सामग्री इत्यादि लेकर ही आए, सब कुछ। और बाद में विनंती की है क्या? तो कर्दम मुनि तो पहले कह अरे मैं कहाँ फंसा? नहीं नहीं, फंसने की बात नहीं है। हमारी बेटी आपकी सिद्धि से बहुत खुश है। उसने सुना है कि भगवान के आशीर्वाद आप पर हैं, हमेशा आप भगवान को साथ में लेकर ही चलते हो, ऐसा ध्यान लगाते हो। मेरी बेटी योग्य है आपकी देखभाल करने में, तो कृपया करो। ईर्ष्या का एक बूंद भी नहीं है और चुपचाप सब कुछ सहन करती है। और कर्दम मुनि भी ईर्ष्यालु नहीं है, लेकिन उसकी देखभाल पता नहीं कितने समय तक की कि उसके बाल भी बनाने का उसको फुर्सत नहीं मिली, अपना देह का भी ख्याल उसने नहीं रहा। ऐसी स्वयं भी तपश्चर्या में पति की सेवा में लग गई थी। तो इतनी दुबली पतली हो गई, जब कर्दम मुनि ध्यान से बाहर आए तो कहा कि भाई आए, तू कौन है, तू कौन है? बाद में वो तो शर्मा गई, कि वो जानती थी कि मेरा ये हाल हुआ तो मेरे पति भी नहीं पहचान पाए, लेकिन मेरा धर्मशील धर्म है, सभी अमान्य के अनुसार वो सेवा कर रही है। तो इसी तरह कर्दम मुनि ने बाद में अपने तपोबल से उसकी इच्छा पूर्ण करने के लिए 9 बेटियां पैदा की। तपस्वी मुनि, इनके पास विस्तार का भी सिद्धि होती है। 9 बेटियां एक साथ में अपना विस्तार करके कर्दम मुनि 9 व्यक्ति में हुए और देवहूति को 9 बेटियां दी। बाद में वो लोग वापस आते हैं
और कर्द मुनि के मैं प्रजापति बन गया, अभी मेरी इच्छा वापस ध्यान में जाने की है। तो देवहूति कितनी चालाक है। हाँ प्रभु जी, हमें पता है कि आपने वचन लिया था मेरे पिता से, लेकिन ये 9 बेटियां तो अपने घर में जाएगी, मेरा उद्धार कौन करेगा? और मैंने सुना है कि भगवान ही आपके बेटे के रूप में आना चाहते हैं, तो आप विलंब क्यों करते हो? तब कर्दम के हाँ, ये अकल ठीक है, कोई ईर्षा भाव नहीं, कुछ नहीं। यह सबसे बड़ा आदर्श गृहस्थाश्रम भागवत में प्रभुपाद जी इसको कहते हैं। वहाँ इंटीमेसी और सौहार्द यानी कि बिग हार्ट दोनों की आवश्यकता होती है, जो वफादारी यानी कि शील या चरित्र बनाने के लिए आवश्यक। आजकल कोई सिखाता नहीं। फाइडेलिटी और चरित्र बहुत ताकत है, और स्त्रियों के लिए तो क्या क्या नहीं कहा है। तुझे बताया था कृष्ण भगवान स्त्रियों में 7 प्रकार से अपना विस्तार करते हैं, ये इनकी विभूति कहलाती है। और पुरुष में एक, कहां 1 कहां 7। स्वभाव से स्त्रियां धार्मिक होती है, स्वभाव से। परदेश में भी प्रभुपाद जी कहते हैं कि देखो ना, चर्च में भी औरतें ज्यादा हैं, पुरुष कम होते हैं, है ना। हमारे यहाँ देखो ना, आप गिनती करो। तो कहने का मतलब है कि ये सारा मामला भक्ति में यदि देखना है तो ईर्ष्या भी स्त्री पुरुष के बीच में नहीं होनी चाहिए। तो यह आदर्श गृहस्थाश्रम बहुत बड़ा विषय है, जो इस्कॉन में हमें बताने की आवश्यकता होती है। क्या क्या मेहनत की है अपने वरिष्ठ गुरु भाइयों बहनों ने मिलकर, ये बताया। देखें, जो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने वाले हैं, इनको तो सीखना ही चाहिए। फिर भी राक्षस स्वभाव वाले, ईर्ष्यालु स्वभाव वाले उन्हें कुछ गड़बड़ी करते रहते हैं, तब क्या किया जाए? चांट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, क्योंकि ये स्वभाव को कोई मिटा नहीं सकता। तो ध्यान देना, और स्त्री चरित्र भी ऐसा होना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को भी सुधार सके। नहीं तो तुलसी महारानी की जो पहले वाली कहानी, वृंदा और जलंधर के बीच में कितना स्वभाव का अंतर है। एक ईर्ष्यालु है, दूसरी भक्त है, तो दोनों का मिश्रण कैसे हो सकता है? भौतिकता में भगवान की कृपा सिर्फ अपने पति को बचाने के लिए कर रही है वृंदा, वो ठीक नहीं। सबके पतियों के भी पति भगवान कहलाते हैं, पतियों के भी पति, शाश्वताम पति। भक्तों के तो पति ही कहलाते हैं भगवान, क्योंकि सारे भक्त आत्मा होती है, स्त्री शक्ति, वो स्त्रीलिंग है। भगवान एक ही पुरुष है, तो सबके पति। तो भगवान के प्रतिनिधि बनकर इतनी सारी रानियां
कभी कोई भोग सकता? नहीं, ईर्ष्या का स्वभाव उसे भगवत्ता से गिराता है। हाँ? ईर्ष्या का स्वभाव। तो यहाँ ये देवहूति और शर्मिष्ठा एक जाति का ही भेद नहीं है, ईर्ष्या का स्वभाव दोनों में है। जहां ईर्ष्या है वहां जाति भेद, ईर्ष्या नहीं है तो कोई भी जाति भेद होता नहीं, क्योंकि भगवान सारी योनियों में अपने को बीज प्रद पिता बताते हैं, तो कहां डिस्टिंक्शन करेंगे? माध्वाचार्य जहां पैदा हुए थे वहां इतने सारे सांप होते हैं, आपको देखते देखते चला जाएगा, और बगल में कुंड है तो वहां मछली पकड़ के वापस आ जाएगा, आपको कुछ नहीं करेगा, वो जहरी नहीं होते। और काले पीले चटपटे दिखाई देते हैं, लंबे, दीवारों में हैं, कहीं हैं, लेकिन मध्वाचार्य के जो शिष्य लोग हैं, क्योंकि मध्वाचार्य ने स्वयं एक राक्षस सांप के रूप में छुपा था, तो उसको कुचल दिया था अपने पांव से। भीम के पैर कितने ताकतवर, ये तो वायु पुत्र के अवतार कहलाते हैं, तो वो जगह भी है। लेकिन भक्त लोग कोई जहरीले सांप होते हैं, कोई उसको मारता है तो उसको संवारते हैं, उसको पालते हैं, ये भी है। कि ईर्ष्या तो होनी नहीं चाहिए, लेकिन सभी का जी बचा सकते हैं, लेकिन बीच में हो तो नहीं, मारो। तो कोई प्रश्न है? हमने क्या कहा? ईर्ष्या हट नहीं सकता है, कैसे इसको कैसे तक इसके संग? ईर्ष्या एनवी कैनॉट बी रिमूव। ईर्ष्या निकाल नहीं सकते तो कैसे निकाले? Too bad I cannot hear today. ईर्ष्या एनवी निकाल नहीं सकते तो कैसे निकाले? हो भगवान का पढ़ो, ये 9वां अध्याय जो है भगवत गीता का, वो ईर्ष्या रहित होने की ही ट्रेनिंग देगा। ईर्ष्या रहित हमें भक्ति के प्रयोग करने होते हैं, ईर्ष्या रहित। प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम्, वो परिणाम भी बता दिया है कि इस तरह का आपका प्रयत्न परिणाम लाना चाहिए। क्या है? जो करा है वो व्यर्थ नहीं, करने में सुसुखम और अव्ययम, अव्ययात्मा। अव्ययम मीन्स इनएग्जॉस्टिबल, ए परमानेंट एसेट बनती है तो हमें वो एसेट बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, कम करने की कोशिश नहीं चाहिए। और मेरे पास इतना है, बहुत है, तो अगले जन्म तक वो बना रहेगा, दूसरे जन्म में फिर से वहां से चालू करना पड़ेगा।
तो यही जिंदगी में क्यों नहीं? आगे पीछे कोई रोने वाला नहीं है, किसके लिए आसक्ति है? अनासक्त भाव से ही तो भक्ति आगे बढ़ सकती है ना। कितना प्रैक्टिकल बनोगे, कब तक? हाँ, जहां तक जिम्मेदारी है थोड़ा करो, पर लेकिन ईर्ष्या को बीच में मत लाओ। हाँ, ईर्ष्या को लाने की कोई आवश्यकता नहीं। यानी कि अपना आंतरिक भजन जो है वो बढ़ाने की आवश्यकता होती है। हाँ, मुक्ति की स्थिति में कई सूक्ष्म अनर्थ बने रहते हैं डीप डाउन, पर आप उसे बाहर नहीं निकालना चाहती हो। कि जहां तक शांतम पापम, कार्यवाही में कोई ऐसी ज्यादा दखलगिरी नहीं है, तो सबके हित के लिए सर्वभूत हिते रता करना पड़ता है। तो सबका कल्याण हो, किसी पर पक्षपात इत्यादि की आवश्यकता नहीं है। हाँ, कोई भक्ति में बाधा डालता है तो ईर्ष्या के कारण तो उसे भी कर्म करने का प्रयोग है। वैसे भी जहां तक एडमिनिस्ट्रेशन का प्रयास है, उसमें भी काफी मुश्किलियां हैं, और पॉलिटिक्स की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन ऐसा वातावरण बनाना चाहिए कि सबको अपनी भक्ति की सिक्योरिटी मिले, सबको अपनी भक्ति की सिक्योरिटी। कोई गैरलाभ लेना चाहता है तो वहां हमें कठोर बनने की आवश्यकता होती है, लेकिन भगवान के हित के लिए। तो जब भगवान का हित, भक्तों का हित समाहित होता है, तब भक्ति आगे बढ़ सकती है। आंतरिक भक्ति में हमें उतरना पड़ता है। बाह्य भक्ति तो हम करते ही हैं, लेकिन गुरु आज्ञा से हमें आंतरिक भक्ति में उतरना पड़ता है। तो वो उसका सारी आंतरिक डिसिप्लिन होती है, हाँ, जो किसी को बताने के, वो गुरु और शिष्य के बीच में ही होती है। वो प्राइवेट होती है, क्योंकि आगे बढ़ना है। हाँ, इस बार हमें ये भजन क्रिया के अनुसार भक्ति विनोद ठाकुर के 8 भजन हमने राधा तत्व पर गाए हैं, और क्रमानुसार तीव्रता कितनी बढ़नी चाहिए, कैसे, किस रूप में। हाँ, तब ललिता और विशाखा की आवश्यकता रहेगी। हाँ? लोग जानते नहीं कि ललिता विशाखा की स्थापना करते क्यों। वो आंतरिक भजन के लिए, क्योंकि ये युथेश्वरी कहलाती है, भगवान के नजदीक ले जाने वाली है, राधा रानी की सखियां। ये सारा आंतरिक भजन में आता है, जो मनुष्य पूरी पक्व दशा में ही कर सकता है। किसी को अंदर चोंच डालने की कोई आवश्यकता नहीं है, अधिकार भी नहीं होता। जैसे प्रभुपाद जी एक वाक्य में कह देते हैं, जब तक हृदय रोग काम अपहृति नहीं हुआ है, तब तक चिंतन करने की कोई आवश्यकता नहीं। सही है, सब मैच्योरिटी तो लानी ही चाहिए। आवश्यकता रहेगी,
और भगवान कृपा करेंगे, सब कुछ ठीक रहेगा। हाँ। पर हमें ऐसा माहौल बनाना चाहिए। ऑलराइट, श्रील प्रभुपाद की जय। हाँ? प्रसाद में रेडी। हाँ प्रसाद में शो ठीक है। सब कुछ ठीक है।